In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. I hope so all of you will be fine. Now, today we will start here exercise 8.3, question number 4. Question number 4 is included in smart syllabus. So, linear graph, linear means the variable which is involved in the fraction having exponent equals to 1. ऐसी इक्वेशन जिसमें तमाम के तमाम वेरिएबल्स की पावर 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड हियर एंड बोथ वेरिएबल्स हैविंग पावर इक्वल्स टू 1. So first of all you have to solve equation number 1. You can name it as equation number 1 and this equation is known as equation number 2. So equation 1 and 2. So first of all you have to mention. Okay. Now you know that y is dependent variable. So x shift to another side minus x plus 1. So x is independent variable. So you have to put the value. Put x equals to 1. So for linear graph you have to remember one thing. This question is important, this exercise is important for the long questions as board exams. So you have to put here 5 or 4 वैल्यूज़। ठीक है, आपने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है 5 या 4 और इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इस तरह से वैल्यूज़ पुट करें जिसमें आप कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लें, कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लें और एक आप ज़ीरो ले लें। ठीक है, इसका जो है ना की पॉइंट वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगी। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। ठीक है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। अभी ऑरली आपको बताया तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करती हूँ। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. सो y इक्वल्स टू -1 प्लस 1. So y equals to 0. Now second value, put x equals to 2. Now you have to get the value of y -2 plus 1. So you have to get that y equals to -1. Check that you have to put here 2 positive values. Now next put x equals to 0. So you have to put x equals to 0. So y equals to -0 plus 1. So you have to write here 1. You have to add or subtract 0 to 1. You have to get the same answer 1. Now you have to put here 2 positive values. Put x negative values. Put x equals to -1. So y equals to minus into -1. Put -1 in place of x. So minus multiply by minus, it becomes plus. So 1 plus 1. So y equals to 2. Now last value you have to put here. Put x equals to 2 minus 2. Now you have to get here y equals to -2 minus 2 plus 1. So y equals to 2 plus 1 minus multiply by minus, it becomes plus. So y equals to 3. So you have to get the value of y. So y is dependent variable जो कि डिपेंड करता है x पे। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अपनी वैल्यूज़ खुद लेता है। ठीक हो गया। इसकी मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स तो डिपेंड नहीं करते ना आप पे। ठीक है, वो खुद कमाते हैं, खुद अर्न करते हैं, खुद सारे एक्सपेंडिचर्स बियर करते हैं। आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं ये बच्चे हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पे। ठीक है, इसका मतलब है आप जो बच्चे हैं वो y है और जो पेरेंट्स हैं वो x है। ठीक है, इससे उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसमें सेम वैल्यूज़ पुट की जाएंगी x की। सो माइनस वाई इक्वल्स टू x शिफ्ट टू अदर साइड -x -1. सो minus is the -1 is the coefficient of y, so shift to other side. Then sin -1 you have to shift other side, so it become plus x plus 1. So you have to put same value. Put x equals to 1 in equation number 2. So you have to get the value of y equals to 1 plus 1. So y equals to 2. Now you have to put x equals to 2. So y equals to 2 plus 1. So y equals to 3. You have to put here commas. Okay. Now you have to write here, put x equals to 0. Now
y equals to 0 plus 1, so you have to get the value of y 1. Now you have to put x equals to minus 1, so you have to get here y equals to minus 1 plus 1, so y equals to 0. Now last value you have to put x equals to minus 2, so you have to get here minus 2 plus 1, so y equals to minus 1. ठीक हो गया। देखिए आपके पास ये वैल्यूज़ आ चुके हैं। हमने दोनों इक्वेशंस का सलूशन फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसे एक टेबल की फॉर्म में शो करेंगे। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है, ग्राफ नहीं ये टेबल मैंने बना लिया है। ये x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 का टेबल है और ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नाउ यू हैव टू ड्रा हेयर कार्टेशियन प्लेन। अब हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, जो क्रॉस का निशान होता है ना, क्रॉस का नहीं, प्लस का जो साइन होता है। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। दैट इज़ एक्स एक्सिस, दैट इज़ वाई एक्सिस, दैट इज़ एक्स डैश एक्सिस मीन नेगेटिव वैल्यू, दैट इज़ वाई डैश एक्सिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज़ द ओरिजिन वेयर टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर मीट टू ईच अदर। नाउ यू हैव टू टेक हेयर इक्वल गैप। मैं आपको यहाँ पे गैप लेना बताती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वल गैप लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 2 सेंटीमीटर का, लेकिन तो स्केलिंग तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा गैप सेम आए। ठीक है, अंदाजे से मैं इसलिए नहीं कह रही कि अंदाजे से जो है ना वो फिर लीनियर ग्राफ में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि गैप आप स्केल से लें ताकि आपके वैल्यूज़ या ग्राफ जो है वो एग्जैक्ट हो। मैं यहाँ पे लूँगी 1.5 सेंटीमीटर का गैप ले रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको विजिबल सही हो। ये 3, नेक्स्ट 4.5, नेक्स्ट 6। ठीक हो गया, ये मैंने 1.5 सेंटीमीटर का गैप लिया। अब यहाँ पे भी मैं सेम गैप लूँगी, y और y डैश पे मैं सेम गैप लूँगी। ठीक हो गया, ये मैंने ग्राफ यहाँ पे शो कर दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँगी +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y 1 2 3 4 नेगेटिव वैल्यू ऑफ y -1 -2 -3 -4 and -5. I have put extra dot here, so that's why I have written here -5. ठीक हो गया, ये गैप आपने इक्वल लेना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले फर्स्ट लाइन का ग्राफ शो करूँगी। यहाँ पे आप चेक करें, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है, आपने बड़े ध्यान से समझना है। देखिए x इक्वल्स टू -1 है तो सर्च करें x इक्वल्स टू -1 यहाँ पर है। ठीक है, और x -1 पे y की वैल्यू क्या थी 2, यानी पॉजिटिव 2, तो x -1 पे आप मूव करेंगे 2 की तरफ। ये मैं डॉटेड लाइन से शो करूँगी ताकि आपको विजिबल हो। ये देखिए -1 के ऊपर और 2 के सामने डॉटेड लाइन ज्वाइन की, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास आ गया, ए पॉइंट। आप देखें x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 यहाँ पर है और y की वैल्यू क्या है 3, यानी फिर पॉजिटिव, तो x -2 के बिल्कुल ऊपर ये और y3 के सामने, ये इस तरह से आएगा। ये सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया। डॉट थोड़ा सा मैंने डार्क करके लगाया। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 0 है थर्ड पॉइंट, तब x 0 यहाँ पर होगा, y भी 0 तो वो भी यहाँ पर होगा। x 0 पे y क्या है 1, y 1 किधर है, ये आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये x 0 पे y 1 है। ठीक हो गया, अब देखें x 1 पे y 0 है, x 1 पे x 1 ये है और y ये 0, ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। ठीक है, ठीक हो गया, और x 2 पे y क्या है -1, x 2 पे y -1 है, यानी नीचे की तरफ आप मूव करेंगे ये, और यहाँ से ये -1 ये डॉटेड लाइन में मैंने इसे कर दी, ये आपके पास आ, ये आपके पास 5th पॉइंट आ गया। अब मैं इसे ज्वाइन करूँगी, ये देखें, ये देखिए मेरा स्केल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधा है, स्लांट लाइन में मूव कर रहा है। ये देखिए, और इन 5 पॉइंट से ये पास करेगा। ठीक हो गया, दैट इज़ द लीनियर ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक हो गया. Okay, now you have to write here equation. You can write here x plus y minus 1 equals to 0. Now you have to plot the second equation. Okay, check the second value. Second, minus 1, so minus 1 and y here 0. So x minus 1 पे y क्या है 0. ये that is the first point. Now x equals to minus 2. So x minus 2 here and y here minus 1. So you can take here, that is the next point. ठीक हो गया. Now that is the first point, that is the second point. Now x 0 y 1, so x 0 y 1, so that point. So let's see, x 0 here and y 1 here, so that is the third point. First point, second point and third point. Now x 1, x1 पे y2 होगा तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे. पॉजिटिव 2 है तो आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे. ठीक हो गया. ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा. ये देखिए डॉटेड में इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये 2 डॉटेड लाइंस आपस में मीट करती हैं. सो यू हैव टू गेट दैट कॉमन पॉइंट. ठीक है. नाउ फोर्थ पॉइंट, x equals to 1, you have to plot here. Now fifth point, x equals to 2 and y will be 3. So you will draw x equals to 2, so y equals to 3. x equals to 2 के ऊपर और y equals to 3 के साथ, तो ये दोनों मीट करती हैं इस पॉइंट पे. देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट. नाउ यू हैव टू जॉइन दैट पॉइंट्स. So you have to join. Let's see. Now that is the second linear equation. So you can write its equation, x minus y plus 1 equals to 0. That is the second linear equation. Okay, so point to be noted that observe the graph here. Two lines meet at this point named as R point. That is the common point. And at R point, what is the value of x and y? Check that. x equals to 0, y equals to 1, x equals to 0, y equals to 1. यानी ये थर्ड पॉइंट पे सेम है, यानी ये इसका कॉमन पॉइंट है. ये हमने यहाँ पे बताना भी है. क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन x एंड y ग्राफिकली. ठीक है, तो आपने इसका सोल्यूशन लिखना है एंड पे. सो यू कैन राइट द आंसर स्टेटमेंट. द कॉमन पॉइंट आर 0 and 1 on both lines is the required solution of the system. I hope so you have understand question number 4 of exercise 8.3. This exercise is important for the long questions. अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपने बड़े ध्यान से सुनना है. ठीक है जी. एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करते हुए आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है जो कि बहुत ज़रूरी है. वो यही है कि आपने इतनी वैल्यूज़ पुट करनी है कि जब तक आपके पास कॉमन पॉइंट नहीं आ जाता. देखिए आपके पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे कॉमन पॉइंट आ जाता था. ठीक है, आ सकता था या आ चुका है, तो आपको बाकी ये 2 स्टेप्स अगर ना भी करें तो नो प्रॉब्लम. ठीक है, मेन चीज़ इसमें ये कॉमन पॉइंट्स आपको चाहिए था. ठीक है. सो अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. चैनल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे हो सके तो शेयर भी करें. अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.